have 1 hour of session today, and we have arranged, and I made sure that most importantly, it won't be the boring casual one jahan sirf slides hongi. No, nothing like that. It would be a full interactive discussion about everything that you need to know about freelancing. हमारा मेन मकसद इस वेबिनार का अरेंज करने का यही था कि आप सबको फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कशन हो जाए, फ्रीलांसिंग के बारे, because freelancing is something that has become a bare necessity, especially in today's world when there's COVID, when we are all restricted to our homes. हर चीज रिमोट चली गई है, like whole world has gone remote now. तो सबसे ज्यादा हमें चैप्टर सक्सेस में मैसेजेस आते थे and feedbacks आते थे that they were most of the our audience was like housewives who wanted to work, who had all the skills, but for many reasons, multiple reasons, they could not go outside to work. So they all used to ask me about freelancing, about how the basics, because freelancing is something that you can, it has a very wide aspect, from coding to marketing skills to content to every single thing that you can and you love to do, but you can earn from it while staying at home. So the most important thing was how to actually do it, how to earn from your home, from your own, be your own boss and stay home and work on this. So freelancing, there are platforms, there are multiple methods that you can work, then you can earn. So today we have two speakers, two amazing, brilliant young women who are from Pakistan, who are not only doing wonders basically in not just freelancing, but in like women empowerment. First of all, Salma Noreen. Salma Noreen is a wonderful freelancer. She has been ranked in top 1%. Welcome, Salma Noreen. Yes, here she is. Thank you so much. Thank you so much, Iza. आपने मुझे इनवाइट किया और थैंक यू सो मच जो मैं अभी देख रहे हैं लाइव। अभी हम बात करेंगे। पूरा अभी बता रही थी कि एक तो आप टॉप रैंक नंबर 1% पे आती हैं, and she's from Attak and she has been working tirelessly and she's been she's been going to sessions, she's been conducting workshops to empower not just women, but she believes in gender equality, and that's what Chapter Success believes in, gender equality. And the second speaker, welcome Lareeb Zamir. Hi Lareeb. She is the founder of X Geekster. That's a tech sanctuary, and that's a digital media platform. And also, not just that, she has excellent skills, and she's worked so much on AI, artificial intelligence, 3D, and a lot of things that I can't even remember. So yes, both of them are brilliant young speakers, and they're going to tell you every single thing about you need to know about freelancing. So let's start from Salma. Salma, floor is all yours. Sure. So मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी इज़ा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा मुश्किल आती है नए जो भी स्टार्ट करेगा, जो भी अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेगा, उसके लिए सबसे जो ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है ये होती है कि पहला प्रोजेक्ट कैसे करें, क्योंकि जो पहला डॉलर कमाना है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। और बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जाके यूट्यूब कर रहे होते हैं कि गीत कैसे क्रिएट करनी है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, वो जो मेन चीज है ना वो बिल्कुल इसको खो देते हैं कि हम लोग रियल लाइफ में करते हैं ना, वैसी ही है। अब जैसे रियल लाइफ में अभी आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ, ठीक है, तो मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, एक ह्यूमन टोन है ना जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, जो मुझसे बात कर रही हूँ मैं उसको आंसर कर रही हूँ, सेम यही टोन हमें चाहिए होती है लाइव भी। जो कि हमारे जो न्यू फ्रीलांसर्स उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, प्रोफाइल प्रॉपर्ली क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप मॉडल्स की पिक्चर नहीं लगा सकते, आपका अपना जो रियल फेस है आपने वही वाली पिक्चर लगानी है, ठीक है। और उसमें भी है कि फिल्टर अगर आपने लगाने में तो बहुत ज्यादा फिल्टर्स नहीं लगा देने कि वो बिल्कुल ही फेक लगने लग पड़े, रॉ लगने लग पड़े। तो मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं, मोस्टली जो बॉयज होते हैं, उनका ये होता है कि यार मैं तो प्यारा नहीं हूँ, शायद इसलिए जो है ना मुझे अपनी पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। यार इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मे बी जॉब में शायद ऐसा होता हो कि आपकी जेंडर की वजह से कोई आपको हायर करता हो या ना करता हो, ठीक है, या आपकी एज की वजह से, आपकी लुक्स की वजह से शायद आपको करता हो, मुझे नहीं पता जॉब्स का, लेकिन ऑनलाइन किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन आपको सिर्फ स्किल से लोगों को फर्क पड़ता है कि आपको आता क्या है, क्या आप उनका काम कर सकते हो नहीं कर सकते। उन्हें नहीं फर्क पड़ता आप लड़की हो, उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता आप लड़के हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने स्कार्फ लिया हुआ नहीं लिया हुआ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गेटअप कैसा है, ठीक है। सो इस चीज में नहीं पड़ना, लेकिन हाँ देखो एक रियल फेस होना चाहिए। अगर इज़ा आप मुझे देख नहीं सकती तो क्या आपके लिए ईजी था मुझ पर ट्रस्ट करना? नहीं, ठीक है।
सेम इसी तरह एक फेस जरूर होना चाहिए। You could have दूसरी been चीज ये alone होती है if I was या not seeing you. हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई किसी को देख नहीं सकता तो वो कैसे उस पर ट्रस्ट करे या उस पर कैसे उससे बात करे, बात करना ही मुश्किल हो जाता है। और इसकी जो रियल एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देती हूँ वो ये होती है कि अगर एक बंदा आपकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाए तो क्या आप उससे थोड़ी देर बात कर सकोगे? नहीं कर सकते हम लोग बात। ठीक है, Exactly. तो सेम ये ऑनलाइन हमारा सीन होता है। दूसरी जो चीज आती है, ओ माय गॉड मेरी लाइट गई। ओके जी, दूसरी जो हमारे पास चीज आती है, सॉरी सॉरी यहाँ पे पाकिस्तान में लाइट चली गई है अटक में। ओके, सो दूसरी जो चीज आती है, हमेशा बोलते हैं कि आपका रियल नेम, ठीक है, रियल नेम ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा नाम सलमान नूरीन है, मुझे अपना रियल नेम सलमान नूरीन यूज करना है, मुझे फेक नेम यूज नहीं करना, मुझे कोई इंग्लिश नेम यूज नहीं करना, मुझे गर्ली, अगर मैं गर्ल हूँ तो गर्ली नेम यूज करना है, और अगर मेरा जो अपना रियल नेम है वो वाला, ठीक है। अगर आप बॉय हो तो ऐसे नहीं कि आप फीमेल की प्रोफाइल बना लो, ये चीजें कभी भी वर्क नहीं करती, ये बहुत नेगेटिव है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये गलत फहमी होती थी कि शायद हम लोग ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे, हम जो कि पेमेंट मेथड की भी आज बात करने वाले हैं इज़ा, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अगर इज़ा का नाम इज़ा नहीं है और वो अपना नाम लारेब रख कर आ रही है कि शायद लारेब ज्यादा प्यारा नाम है, ठीक है, तो कल को जब अपने पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाना होगा तो आपका बैंक अकाउंट तो आपके नाम पे होगा, तो आप क्या करोगे? जब एड्रेस वेरीफाई करवाना होगा तब क्या करोगे? So ठीक it है, has to be, it has to be the exactly the real name रियल and नेम, एग्जैक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो आपका अगर तो आपकी कंपनी है, ठीक है, और आपकी वो रजिस्टर्ड है ताकि कल को आप वेरीफाई करवा सको, फिर तो ठीक है, आप उसको यूज करते हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल है तो कोई रीजन ही नहीं है कि आप कोई फेक नेम यूज कर रहे हो या फेक स्पेलिंग यूज कर रहे हो या कुछ और लगा रहे हो, क्योंकि कल को आपको अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो न्यूबीज हैं वो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा, जैसे वो लगा लेंगे यूके का फ्लैग लगा लेंगे कि पाकिस्तानियों को कौन काम देगा, हम यूके का फ्लैग लगा लें। तो यहाँ पे मैं सबको ये बता दूं, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों को तो काम मिलता है, क्योंकि हम ही तो काम करने वाले लोग हैं। sure. Oh, that is so that हमें good. हाँ, तो अगर आप यूके का फ्लैग लगा रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि आप अपने आप को वेरीफाई कब करवाओगे या कैसे करवाओगे जब आप यूके में रहते ही नहीं हो, ठीक है। तो दूसरा ये कि आपको बहुत ज्यादा इग्नोरेंस मिलेगी, लोग आपको नहीं हायर करेंगे, ठीक है। आप बोलने बैठोगे तो आपकी वो इंग्लिश वैसी नहीं होगी, आपका कम्युनिकेशन का वे वैसा नहीं होगा जैसे यूके वाले लोगों का होता है, तो आप वहां पे भी मार खा जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है जो रियलिटी है, जो रियल है आपका, वही आप मेंशन करो, ठीक है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मेंशन करो, ठीक है। अगर पाकिस्तान में भी जो भी सिटी है आपका वो मेंशन करो, क्योंकि बाहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आपके क्लाइंट्स हैं, कि आप अटक से बिलोंग करते हो, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो, चिन्नौर से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाकिस्तान So आप लगा रहे हो। sorry to interrupt. So we have established the fact कि अपना जो profile है that should be very real, from your picture to your name to your space to your location, every single thing should be such रियल, होना चाहिए. So यप, ये अगर ठीक है। profile को अगर हमने build कर लिया, what about projects and how to bid projects and get client, क्योंकि ये सबसे important लोगों का question था. हाँ, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने मेरी प्रोफाइल को मतलब अगर इज़ा आपको पता है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तभी तो आपने मुझे यहाँ बुलाया ना, ठीक है, क्योंकि आपको मेरी प्रोफाइल का पता था, ठीक है। अगर आपको मेरी प्रोफाइल का क्लियरली पता नहीं चल रहा ना, तो आप मुझे नहीं बुलाओगे, आपको पता ही नहीं मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों करना है, ऐसे ही है। सो आपकी प्रोफाइल तो ऐसी होनी चाहिए, आप रीजन दो कि आपको क्यों चूज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आप करते हो, आप जो किसी क्लाइंट का काम करते हो ना, अगर आपने मुझे बुलाया, ठीक है, तो मुझे इस सेशन का समझ में आया कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है, या हमने क्या बात करनी है, ठीक है, तो वो चीज मैं तब ले सकूंगी। सेम इसी तरह से प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप प्रोजेक्ट को पढ़ो कि वो है क्या चीज, क्या वो सर्विस दे भी सकते हो या नहीं दे सकते, ठीक है। फिर जब प्रपोजल लिख रहे होते हो ना, तो एग्जैक्टली वही बात करो जो कि आपका क्लाइंट सुनना चाह रहा है, ठीक है। लाइक अगर आपने वेबसाइट बनानी है, तो मैं अगर आपको ये कहूंगी कि हाँ मैं आपकी वेबसाइट बना सकती हूँ और मैं वर्डप्रेस यूज करूंगी, तो बेहतर रहेगा, या मैं आपको ये बताऊं मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है। Exactly, the skills matter. ठीक है। तो जो मोस्टली लोग प्रपोजल राइटिंग में गलतियां करते हैं वो ये करते हैं, अपनी तारीफें झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रोफाइल अब बिड में मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपका एक सेक्शन है, आपका प्रॉपर एक सेक्शन है प्रोफाइल वाला, वहां पे सारा कुछ एक ही दफे डालो, सारा शौक पूरा कर लो। उसके बाद प्रपोजल में आपने वो नहीं मेंशन करना, प्रपोजल में आपने क्लाइंट की बात को ही लेके चलना है, क्लाइंट का जो मसला चल रहा है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन देना है कि हाँ जी ये काम ऐसे होगा। अगर कोई बात कर रहा है राइटिंग की, फिर आप उसको ये मत बताओ कि मैं वेबसाइट डेवलप भी करता हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, उसे नहीं चाहिए। उसे भी राइट नाउ एक राइटर चाहिए। राइटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, You're एग्जैक्टली टू द talking पॉइंट वो चीज about बताओ। somebody like a client has reached out to you कि मुझे ये मेरा ये काम है कंटेंट राइटिंग का, आप उसके प्रपोजल की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम हर टर्म को ना बहुत सिंप्लीफाई यहाँ कर रहे हैं सेशन में, कि जिसको कुछ भी नहीं पता फ्रीलांसिंग का, हम उस हिसाब से हर बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम प्रपोजल बिल्कुल वैसे बेसिक सी बात करें, जो बेसिक गलतियां लोग नॉर्मली करते हैं ना,
जो पहला प्रोजेक्ट जिनका 2-2 3-3 महीने उनको नहीं मिल पाता, उनकी यही बेसिक गलतियां होती हैं, ठीक है। और अगर आप ये छोटी सी गलतियों को मतलब इनको इस तरह करो रियल लाइफ के साथ मैच करके अगर चलो ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आज आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, आपको 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो करियर है वो स्टार्ट ना हो जाए। लाइक आपको पहला प्रोजेक्ट ना मिले, कोई रीजन नहीं है कि ना मिले, लाइक अगर आप अच्छा। ये सारे काम कर रहे हो तो, ठीक है। सो अब क्या होता है कि आपके पास जो चीज नहीं होती वो होती है कि आपके पास रिव्यूज नहीं होते, और आपके पास जो प्रोफाइल ना ईयर्स पहले की नहीं बनी होती, न्यू प्रोफाइल होती है और रिव्यूज नहीं होते, बस ये 2 चीज मिसिंग होती हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को आप साइड में कर सकते हो अगर आप बाकी सारी चीजें सही कर लो, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सही का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छा से बना लो। लाइक अगर आपने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देनी है तो आपकी जो वेबसाइट जो आपकी प्रोफाइल है ना, उसे साफ पता चलना चाहिए ये वेब डेवलपर है। अगर आप राइटिंग की सर्विसेज देना चाहते हो तो आपकी प्रोफाइल से पता चलना चाहिए राइटर है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप प्रपोजल लिखते हो ना, तो क्लाइंट के पास ना एक आप बिडर नहीं हो, ठीक है, उसके पास 50-60 लोग हैं जो कि हैं, ठीक है। सो ओके। अगर एक तो आपका प्रपोजल अच्छा होगा, वो पढ़ेगा, तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल देखेगा। ये तो एक मेन पॉइंट है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि पहले अगर आपका प्रपोजल ही अच्छा नहीं है, आपने अपनी तारीफें झाड़ी नहीं है, तो उसके पास तो ऑप्शंस हैं, वो किसी और बंदे को चूज कर लेगा, ठीक है। आप जहाँ पे मार there खाते are हो ना, जैसे thousands of अभी people out there. जैसे भी मोस्टली क्या होता है, बच्चे जो शिकायत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मैंने तो फ्लां फ्रीलांसर से लिया था, वो तो इतना कमा रहा है पर मंथ, उसने मुझे प्रपोजल दिया था, मैं एज इट इज वो पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने 2800 पोस्ट कर मतलब प्रपोजल डाल लिए, लेकिन अभी तक मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो उसने मेरे साथ चीट किया, ये किया वो किया। अरे भाई वो उसके लिए फिट था, ठीक है। आप जनरल प्रपोजल नहीं डाल सकते, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप सारों तो से ये एक तरह की बात इस करो। इस बात से रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी आया है कि हाउ कैन वी गेट क्लाइंट्स व्हेन देयर इज ऑलरेडी सो मेनी गुड कॉम्पिटिटर्स। शांजे इलियास। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा यही कहूंगी कि जैसे अभी राइट नाउ हम 3 गर्ल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कैमरा में, ठीक है। हम तीनों के ही जो है ना आईज हैं, ठीक है, तीनों के पास नाक है, तीनों के पास लिप्स है तीनों के पास वो सारा कुछ है, लेकिन तीनों गर्ल्स हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारी एक यूनिक पर्सनालिटी है तीनों की, ऐसा ही है। तो ऐसे ही है। सेम ऐसे ही अगर फ्रीलांसर्स एक दो क्या मिलियंस हो जाएं, हर बंदा टोटली यूनिक है, ठीक है। आपके पास स्टिल ऑप्शन होता है कि आप एक अच्छा प्रपोजल लिख लो, बेशक वहां पे कितने ही साल पुराने हैं, उनके पास हजारों रिव्यूज हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आपको जिसे कहते हैं ना, किसी को कन्विंसिंग प्रपोजल लिखना आता है आपको, ठीक है, तो आप अपनी एक यूनिक वो रखते हो, वर्ड रखते हो, ठीक है। सो आप विन कर सकते हो, सिर्फ ये कि आपने और ध्यान से प्रपोजल लिखना है। ठीक है। एंड हाँ, जब हम लोगों ने जब अगर बिड कर लिया प्रोजेक्ट, हमने अपना प्रपोजल बना दिया, तो फिर उसके बाद हाउ डू वी नो कि हमने चार्ज किसे करना है, किस क्लाइंट को कैसे चार्ज करना है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें ना हमारे पास कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। एक होता है कि जैसे मेरा महीने का गोल कितना है, मुझे एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए पर मंथ, ठीक है। जितना भी अमाउंट चाहिए, आप कहते हो मुझे 90,000 रुपीज चाहिए, जो भी आप सोचते हो, ठीक आपकी है। मर्जी, ठीक है। क्योंकि आपने कहा कि मैं अगर जॉब करता तो मुझे 30,000 की जॉब मिलती, और अगर मैं फ्रीलांसिंग करूंगा तो मुझे 90,000 चाहिए, मतलब 3 टाइम ज्यादा चाहिए, ओके जी। आप अपने डिसाइड कर लिया अपना गोल। अब आप डेली कितना टाइम दे सकते हो फ्रीलांसिंग को, ठीक है, और एक आवर में कितना काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अपना गोल सेट कर लेते हो, और फिर आप उस तरह से प्राइसिंग कर देते हो, क्लाइंट्स को देते हो, ठीक है। और आप ठीक इस है। तरह से मेहनत करते हो। एक तो ये स्ट्रेटजी होती है। दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने रिव्यूज कमाने के लिए जब भी किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हो ना, तो एवरेज प्राइस देखते हो। अब एवरेज प्राइस क्या चल रही है, बाकी लोग क्या प्राइस दे रहे हैं, उनकी एवरेज क्या चल रहा है, ठीक है। उससे थोड़ा कम लगा लेते हो, क्योंकि आपकी न्यू प्रोफाइल है, तो अगर आप थोड़ा सा कम भी लगा लोगे रिव्यू पर्पज के लिए तो कोई नहीं, इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत कम भी नहीं लगा लेना, ऐसा भी नहीं कि आप 1 घंटे के $2 चार्ज कर लो, वो तो बहुत कम हो जाएगा, फिर तो कोई आपको प्रोजेक्ट देगा ही नहीं। ये तो इतना कम जाता है कि जिसको काम नहीं आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से थर्ड जो सबसे अच्छा वाला ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि अगर मैं ऐसा को कहूँ कि मैं आपको $500 में वेबसाइट बना के दूंगी, तो मे बी वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। ताकि मैं इनसे पूछूंगा आप मुझे ना वेबसाइट डेवलपमेंट का कितना देंगी, पे करेंगे, ठीक है। मैं उनसे पूछ लूँ उनका बजट क्या है। अब क्या है कि अच्छा। मोस्टली क्लाइंट्स के वेस्टर्न होते हैं, तो वो बाहर अगर किसी को हायर करते तो वो $5,000 दे रहे होते, ठीक है। तो वो मैं आपको तो हाँ, बोलो बेटर नहीं है कि क्लाइंट आपको बता दे कि आप $15 दे देता हूँ, एग्जैक्टली। नहीं। नो वंडर दे वो पहले अपनी रिसर्च भी करते होंगे कि पाकिस्तान में कम रेट्स हैं, उसमें पाकिस्तान में उस वही क्वालिटी का काम कम रेट्स में मिल जाएगा। नहीं, मैं बताऊं, मोस्टली क्लाइंट्स को कुछ नहीं पता होता, वो टोटली ब्लैंक आते हैं, अच्छा। ठीक है। जैसे कि अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी $20 में भी वेबसाइट बना रहे हैं, $500 में भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जब अगर एक चीज $20 में भी हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है, तो मुझे लगता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका क्लाइंट आपको $500 भी देता है तो $20 से तो बहुत ज्यादा $500,
ठीक है। और अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा हिम्मत करके कह लेते हो कि जितना क्लाइंट का बजट है वो कर ले, तो आप देखोगे क्लाइंट हमेशा $500 से ज्यादा ही देगा, जो आपने सोच के रखी हुई है ना प्राइस, उससे ज्यादा ही हाँ, देगा। ठीक है, तो ये टाइम थर्ड कितना जो लगता है स्ट्रेटजी है important ये मेरे केस में हमेशा ये वर्क करती है। गुड, दैट्स नाइस। नहीं तो टाइम कैसे हम लाइक हम चार्ज कर रहे हैं, हाउ डू वी नो कि इस पे कितना टाइम लगना है, उस टाइम के हिसाब से भी हम चार्ज करते हैं कि महीना लग सकता है। अच्छा, इसमें ना अगेन दो ट्रिक्स हैं इसमें टाइम के लिए। अगर तो मैं न्यू हूँ एक चीज में, मतलब कि एक बंदा आज ही काम स्टार्ट कर रहा है, उसको नहीं पता कि एक आर्टिकल लिखने में उसको कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसको ये बात पता है कि यार एक आर्टिकल यानी 500 वर्ड लिखने में बहुत भी बंदा स्लो हो तो इसको 1 घंटा लग सकता है, ठीक है, रिसर्च वर्क सब कुछ निकाल निकुल के, ठीक है। अब उसको ये बात पता है कि अगर मुझे पूरा दिन लग रहा है, तो ये चूंकि मेरा वीक पॉइंट है कि मैं न्यू हूँ इस चीज में, लेकिन ये है 1 घंटे का काम, ठीक है, तो मुझे $10 चार्ज कर लेना चाहिए या ये वो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये देखते हो कि मे बी क्लाइंट काम बढ़ाता जाएगा, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है तो क्लाइंट काम बढ़ाता जाएगा, सो पता नहीं कि मुझे इसको फिक्स रखना चाहिए या नहीं, तो उस सूरत में आप ना ऑर्डरली रख लेते हो, क्लाइंट को बता देते हो भाई मेरी ये स्पीड है और मैं ऑर्डरली रखूंगा, जितने घंटे मुझे लगते जाएंगे आप मुझे उतना पे करोगे। तो जो मैं सजेस्ट करती हूँ न्यू बीज को हमेशा ये कि आप ऑर्डरली में जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। बस क्लाइंट को बता दो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे इतना आता है, और अब इसके बाद जितने घंटे लगते जाएंगे इस काम पे, वो जाहिर सी बात है स्क्रीनशॉट सारे क्लाइंट के पास जा रहे होते हैं कि आप काम कर रहे हो या चैट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको वो अच्छा पे कर देता है। तो अर्ली में जो न्यू बीज को फायदा होता है। ठीक है, ठीक है, दैट्स नाइस। सो आप किस पे प्लेटफॉर्म में काम करते हो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, एंड हाउ डू यू गेट योर क्लाइंट्स, इस तरह से अपनी थोड़ी, बिकॉज ओके, लारेब इज गोना जॉइन अस इन 5 minutes, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम एकदम आ गया बिकॉज पीटी से तो शी जस्ट टेक्स्टेड, वो बस आ रही है अपनी कन्वर्ट करके। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरी साइड में ना लाइट गई हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं स्क्रीन को नहीं शेयर करती और ऐसे ही बता देती हूँ। मैं ना freelancer.com पे अभी ज्यादा एक्टिवली काम करती हूँ, अच्छा। और इसके अलावा मुझे ज्यादा अच्छे वाले जो काम मिलते हैं, यानी अच्छे बजट वाले जो काम मिलते हैं, मुझे linkedin.com से मिलते हैं, ठीक है। linkedin.com पे हम काम लेने के लिए क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी एक्टिविटी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, बस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की, अपनी एक्टिविटी ऑप्टिमाइज की, और आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो जो न्यू भी है ना, जिसने आज आज काम स्टार्ट करना है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो फाइवर या फ्रीलांसर को ज्वाइन कर ले, ठीक है। फाइबर। फ्रीलांसर पे ये कि वहां पे बिडिंग स्टाइल है, आप बिड करते हो, क्लाइंट आता है, काम पोस्ट करता है, आप अपनी मर्जी से एक प्रपोजल सेंड करते हो, यानी बिड करते हो और आप काम ले लेते होते हो। फाइवर पे क्या होता है कि आप एक ही दफा गिग क्रिएट कर देते हो, ठीक है, अपना सर्विस एड क्रिएट कर देते हो, क्लाइंट आता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है और आप उसको डिलीवर कर देते हो, बस इतना सा काम होता है। सो न्यूबीज के लिए दो प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है। यूपिटर यानी अगर हम फाइबर फ्रीलांसर और ये अपवर्क की साइज सेम है, बिकॉज़ आई हैव नो आइडिया अबाउट मतलब आई हैव नहीं, सब वर्क ऑन। सेम नहीं है। ओवरऑल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म दो तरह के हैं, कुछ हैं जिनमें बिडिंग चल रही है, कुछ हैं जिनमें सर्विस हाँ, साइड ये टाइप तो चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो when फाइवर जो है वो बेस है सर्विस साइड टाइप का, और जो फ्रीलांसर है वो बेसिक सा है उसका बिडिंग का, ठीक है। यानी अगर कोई भी न्यू भी यूज करता है ना, तो उनके लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म समझना भी आसान है, इन पे प्रोफाइल अप्रूव करवाना भी आसान है, और इन पे काम मिलना भी उनके लिए बहुत आसान है। जबकि अपवर्क क्या है कि वो भी बिडिंग साइड है, लेकिन अपवर्क पे ना प्रो लोग जाते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि हर बंदा अपवर्क पे काम विन नहीं कर सकता, और हर बंदे की प्रोफाइल भी अप्रूव नहीं होती अपवर्क पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रो होना पड़ता है, फिर आप जाओ। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ जो न्यूबीज होते हैं वो स्टार्ट इन दोनों से कर लें, फिर बाद में चेंज करते जाएं। मतलब आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म तो कम नहीं है, टॉप भी अप्रूव है वहां कैसे पे होता है जस्ट। आपका प्रोफाइल ऑन इवन फ्रीलांसर, एंड जो न्यूबीज ज्वाइन करते हैं उनका अप्रूव कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है? फ्रीलांसर या फाइवर पे अप्रूव का कुछ भी सीन नहीं है, आप बस आज ही प्रोफाइल क्रिएट कर लो, आप डन, आप स्टार्ट कर सकते हो काम। हाँ, अच्छा। फ्रीलांसर पे ये होता है कि आपको पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाना पड़ता है। अगर आपको पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है तो मतलब देखो, आप ऐसा है कि आप कहते हो मुझे ना मैं काम करूंगी, ठीक है, अर्न करूंगी, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी, कहाँ भेजूंगी, ठीक है। तो मतलब कि आप काम में सीरियस ही नहीं हो, तो इतना बैंक अकाउंट तो बनवा कर आओ ना एटलीस्ट, ठीक है। हाँ, तो पेमेंट मेथड तो क्लाइंट है या फ्रीलांसर है, जो भी बंदा है तो जो प्रोफेशनली अब काम करने जा रहा है, उसके पास पेमेंट मेथड तो वेरीफाई होना चाहिए ना। क्लाइंट के पास इसलिए कि उसने पे करना है, और फ्रीलांसर के पास इसलिए कि उसने रिसीव करने हैं पैसे, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, बाकी तो सारा कुछ इजी पीजी होता है। ठीक है, ठीक है। सो आपको जब आपने बैंक्स वगैरह सेटअप किया था, प्रोफाइल बिल्डअप किया, एंड देन यू, ओ लारे जॉइन, हाय लारे। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट बंद हो गया और उस दौरान मैंने सोचा मैं अपनी चाय ले आऊं, तो बस अच्छा, सॉरी। चाय आ गई? यस, आ गई। आई थिंक ओके, आई मिस टी नाउ। चलो कोई नहीं, बाद में पीऊंगी। अच्छा, सो लारे, हमें सलमा ने यस, तो सारा बता दिया कि फॉर लाइक बिल्कुल। मूवीज, जस्ट क्वेश्चन, एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है आयशा खान से।
how can we represent work portfolio that wins customer attention, or how newbies freelancers make work portfolio? Salma. ओके सो ऐसा है कि अगर फर्ज करो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वेबसाइट्स बना सकती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने वेबसाइट्स बनाई नहीं है, ठीक है। अगर लारेब में मुझे हायर करना है और मैंने वेबसाइट्स नहीं बनाई हुई, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो लारेब के लिए मुश्किल है ये डिसीजन लेना कि मुझे हायर करे। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि बजाय इसके कि मैं जॉब वाला रोना ढूंढूं कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं देगा मेरे पास एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, तो हम लोग फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को ना फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स बना कर देते हैं। जैसे मैं देखूं कि क्या इज़ा को वेबसाइट चाहिए, हाँ इज़ा मेरी फ्रेंड है, उसको वेबसाइट चाहिए, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर दे दूं और उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूं। अब जब लारेब देखेगी यस मैंने ये वाली वेबसाइट बना के रखी हुई है, तो अब लारेब के लिए इजी है मुझ पर ट्रस्ट करना। ऐसा ही Exactly. है ना कि मेरा पोर्टफोलियो है। Word of mouth से मैं भी कहूंगी नहीं, I like her work, she's trustworthy, of course. ऐसा ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब तक आपको काम नहीं मिलता, लाइक एक हफ्ता आपको काम नहीं मिल रहा, तो आपने ये रखना है कि आपने रोज एक दफा एक काम कर लेना है। लाइक आप राइटिंग करना चाहते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हो, हर रोज की एक वेबसाइट डेवलप करके अपने पोर्टफोलियो में डालते जाओ। तो 14 दिन के बाद आपके पास 14 वेबसाइट्स बन चुकी होंगी जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सकें। बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ बैठ रहे हो, जब कोई काम देगा तो मैं काम करूंगा वरना मैं काम ही नहीं कर सकता। सो उससे बेहतर ये कि आप पोर्टफोलियो बिल्ड करो। राइटिंग है तो आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। Yes. आपके स्किल पे डिपेंड करता है आप जिस पे। अब हम बात करेंगे स्किल्स की और बाकी प्लेटफॉर्म्स की। ओवर टू यू लारेब। लारेब, आपने पहले तो आप सबसे पहले बताएं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं और उसमें कैसे तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन yes. करवा दूं कि करंटली मैं एक्स गीकस्टर के साथ साथ अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी भी कर रही हूँ जिसका नाम है आइडिएटर्स लैब। पहले इसका नाम मेरी कंपनी से करा था रिलेट, लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा सा किया है रीब्रांड, क्योंकि यहाँ पे जैसे लोगों के लिए किसी का नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, उसी तरह मेरी कंपनी का नेम प्रोनाउंस करना उनके लिए थोड़ा सा हो रहा था टफ, तो मैंने इसको किया चेंज। और फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा था, लेकिन जब अपनी मार्केटिंग एजेंसी मैंने बनाई तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि जब आप काम करते हैं ना तो लोकल काम काफी नहीं होता आपके लिए। जब तक आपके पास इंटरनेशनल नहीं आ रहा काम, आपका एक पोर्टफोलियो नहीं होता स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे हाँ मैंने जब फाइवर नया नया आया था 2015 में, मुझे याद है मैं अरफा में होती थी तब मैंने अपनी दोनों प्रोफाइल्स बनाई थी, फाइवर प्लस अपवर्क। अच्छा. उस टाइम पे मेरे पास पर्सनली इतना पोर्टफोलियो नहीं था और तब मेरे पास इतने स्किल्स भी नहीं थे। तो नॉर्मली मैंने कुछ ग्राफिक्स के मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ थी मेरे पास पोस्ट थी, कुछ लोगोज थे, वो मैंने कर दिया अपलोड। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, उसके अलावा मैंने कुछ सीखा इधर उधर से, तो मैंने करना शुरू किया, बट मैंने फिर छोड़ दिया। मेरे वही अकाउंट्स अब मेरे कंपनी में आ रहे हैं काम। मेरे पास अब पूरी टीम है, हमारे पास बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। जैसे कि सलमा ने कहा था कि पोर्टफोलियो ही होती है आपकी चीज, मतलब आपको अगर चाहिए काम किसी से तो आपकी बुनियाद आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, आप भूल जाएं कि कभी काम मिलेगा। एक आपको बोलना आना चाहिए, क्लाइंट से बात करनी आनी चाहिए, कोई फजूल बात नहीं करनी, आप क्या है कहाँ से हैं, जो कि सलमा ने भी किया, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट किए हैं हाईलाइट। अगर आपको अच्छी फ्रीलांसिंग करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है वो अच्छी हो, तो दो प्लेटफॉर्म ही है जो मैं आप लोगों को कहूंगी कि बेस्ट है, रिकमेंड करूंगी। एक फाइवर है और एक अपवर्क है। उसके अलावा काफी सारी और आगे में साइट्स, लेकिन मसला क्या है कि वहां पे ना तो इतने क्लाइंट हैं और आपका जो एक पेमेंट गेटवे है वो भी नहीं है इतना सिक्योर। जबकि फाइवर का और अपवर्क का जो पेमेंट गेटवेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि आप जिस क्लाइंट से कर रहे हैं बात, अपवर्क ने उसको अप्रूव किया है, तभी वो उसके ऊपर कर रहा है काम। जब तक आपकी आईडी अपवर्क अप्रूव नहीं करता, ना तो आप वहां पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ना आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अपवर्क सिर्फ उनकी प्रोफाइल करता है अप्रूव जो जैसे उनके पास अश्योरिटी आती है ना कि हाँ ये लोग ऑथेंटिक है, इन्होंने काम देना है, और ये लोग ऑथेंटिक है, इन्होंने काम उठाना है। तो आपकी प्रोफाइल आप चाहते हैं अगर अप्रूव हो, उसके अंदर आपने कभी भी अब पहले तो बहुत इजी था, अब के लिए
ये कह रही हूँ। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना ऐड कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे वेब बनानी आती है, ये वो, क्योंकि इतनी लो प्रोफाइल को वो अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि मैं वो चीज आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। ऐसा हुआ कि प्रोफाइल जो थी वो मेरे नाम पे थी, 2015 वाली पिक्चर थी, वो मैंने की चेंज। उस टाइम पे मुझे ऐनक नहीं लगी हुई थी, अब मुझे लगी हुई है ऐनक। तो अपवर्क ने कहा कि आप अपनी ना प्रोफाइल जो है वो फ्रंट फेस के लगाएं। तो मेरे टीम मेंबर है नुमान, वो हर जो अपवर्क और फाइवर के प्रोजेक्ट हैं वो करते हैं लीड। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी ना कोई न्यू दे पिक, उन्होंने मांगी है, मैंने लगा दी। उन्होंने कहा कि ये तो आप है ही नहीं, ये तो फेक है, आप उसमें कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको अपनी पिक्चर्स ईमेल की, मैंने पोर्टफोलियो सेंड किया, मेरी उनसे बात हुई ईमेल के ऊपर कोई 1-1.5 हफ्ता। उन्होंने एट द एंड क्या किया, मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। ओह, हमारे क्लाइंट्स चले गए। और सलमा ने जो कहा है वो बहुत सही है, बहुत सही है, यकीन जाने ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा हुआ था। तो हम लोगों ने जब हमारी आईडी हुई ब्लॉक, हमने उनसे कहा कि देखिए मैं रियल हूँ, मेरा नाम वही है, मैंने आईडी कार्ड दिए, डॉक्यूमेंट दिए कि ये सब रियल है। उन्होंने कहा नहीं, एक दफा जो गया वो गया। सो वो आईडी नहीं मिली, उसके ऊपर जो पैसे थे, उसके ऊपर जो थे क्लाइंट, वो सब गुस्साए हो गए? चला गया। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा आईडी ब्लॉक हो गया ना। टोल देम कि मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ आपसे, लाइक नहीं अगर नहीं, आप वीडियो कॉल नहीं, आपने उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर की अपलोड, उन्होंने कहा कि ये कोई और है, आप नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऐनक नहीं थी, अब ऐनक है। ऐनक के बगैर भी मैंने उनको पिक्चर दी, उन्होंने कहा अब नहीं हो रही है मैच, क्योंकि 2015 एंड 2000 आई थिंक 19 का शुरू था, बहुत फर्क आ गया था। आप हर साल थोड़े से होते हैं चेंज। उस टाइम पे आई वाज सो यंग। सॉरी। लारे आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं इसलिए एंट्री मैंने मारी कि मैं ये बता सकूं कि अपनी ही पिक्चर अगर आपकी ओल्ड वाली है तो उस पे भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। देखा, सो आई टोल्ड यू। फेक जो है ना, फेक बिल्कुल नहीं लगानी। और इनका तो सिर्फ ये लॉस हुआ कि इनके जो पैसे पड़े थे वो चले गए या बाकी सारा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ना डिमोटिवेशन के इश्यूज भी हो जाते हैं। अगर आपने फर्ज करो नहीं, चार अल्लाह का हजार पांच शुक्र है कि हजार हमने रिव्यूज ऐसे बना नहीं लिए, किया। नहीं, अगर आपके चार हम हजार अल्लाह 5,000 रिव्यूज होते और वो सारे चले जाते तो आपको बहुत दुख होता कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी इस आईडी पे। जाहिर सी दुख बात है आप बहुत एक हुआ था। परसेंटेज, हाँ एक्चुअली बिल्कुल, हमारा एक एक अच्छा अर्निंग रिसोर्स था, एग्जैक्टली क्योंकि मुझे पता था लोकल क्लाइंट के साथ मेरे पास इंटरनेशनल भी हैं। जब इंटरनेशनल एकदम से आपके पास वो जाता है ना, तो बंदा हिल जाता है। और आपको पता है लोकल्स में ना ये चीज नहीं होती है कि संडे है या कुछ भी है। अभी भी आपकी कॉल से पहले आई टोल्ड यू कि मैं क्लाइंट के साथ ही फोन पे। तो इस तरह के बहुत इश्यूज होते हैं इंटरनेशनली। जब आप करते हैं काम, आपको पता होता है एक तरीका है, उन्होंने आपको एडिटिंग का भी पे करना है। यहाँ पे तो हर बंदा कहता है एडिटिंग कर दे, थोड़ा सा तो काम है, पैसे क्या करने हैं। तो यहाँ तभी पे I ये think तो I हमें think आदत हो गई थी। I think that's why people opt out for freelancing, especially for international clients. क्योंकि at least वो they respect everything. They don't make sure एग्जैक्टली। कि ज़्यादा काम करो और कम पैसे दें. I think that's why. मुझे एक बात बता लारे, आप बता रहे हो कि आप फाइवर और अपवर्क में ही मतलब कि सबसे ज्यादा करते हो. We had a बिल्कुल। question on our post yesterday from Minahil Aslam कि उसमें फाइवर और अपवर्क में जो लाइक वहाँ काम ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टीडियस हो जाता है. So how do you find track clients over there yourself, especially Fiverr? आपको जैसे आजकल Amazon और शॉपिफाई ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। इसी तरह प्रोजेक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए कि आपकी टीम में कौन कौन है या आपको कौन कौन से स्किल आते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे प्रोग्रामिंग भी आती है, मुझे डिजाइनिंग भी आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे हर काम थोड़ा थोड़ा आता है। वो Artificial इसलिए intelligence. ताकि ताकि एग्जैक्टली पता है क्या, आई बिलीव कि जब आप कुछ कर रहे हैं ना, पर्सनली आपको हर चीज की नाहा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि कोई फ्री नहीं है, क्लाइंट के साथ आपने करनी है बात। आपको अगर कोई चीज आती ही नहीं है, उसका मतलब आपको पता ही नहीं कि शुरू क्या है, आप उससे किस तरह करेंगे डील। या फिर अगर आपको कुछ नहीं आता, आप किस तरह से देखेंगे कि मैं कोई प्रोजेक्ट उठाऊं। क्योंकि अभी आप देखें, आप
किसी भी पे जाएं, आप Amazon आप Upwork पे जाएं, आप Fiverr पे जाएं, वहां पे सिर्फ अब वेब एप्लीकेशन या फिर डिजाइनिंग का काम है, वहां पे हर चीज का काम है। इनफैक्ट अगर किसी को वो चाहिए ना, विजिटिंग कार्ड से लेके उनके पास Amazon तक का है काम कि आप हमें प्रोडक्ट हंटिंग दे दें। ठीक उसके है। बाद आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग का भी है काम। तो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हर तरह की ऑडियंस है। अब जब ये शुरू हुआ था यहाँ पे, तब तो बहुत मेजर चीजें थी, बट नाउ उसके ऊपर बहुत कुछ है। अगर वहां पे ऑप्शन ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपके पास भी अर्निंग के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बस आपको देखना है कि अगर मेरी टीम है, अगर आप टीम के साथ काम करें, तो आपकी टीम में कौन कौन है, आपको उस लिहाज से उठाने हैं प्रोजेक्ट। ठीक है। अगर आपको पता है कि सिर्फ आप अकेले हैं, आपने इंडिविजुअली करना है काम, तो आप पहले देखें कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। आपके पास अगर पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आप किसी फ्रेंड का भी कर रहे हैं यूज, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी नाउ हाउ होनी चाहिए, ताकि आप क्लाइंट के साथ कम से कम डील बना लें। ठीक है, Skills उसके बाद आपको एग्जैक्टली अगर वो काम आपको आता नहीं है, प्रोजेक्ट आ गया है, फिर क्या करेंगे आप? यहाँ से मुझे एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था, वन जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्किल्स। हमने बात सारी कर ली, सलमा के साथ भी, आपके साथ भी अभी तक, के बेसिकली बिल्ड अप, बिकॉज हमें इसमें हर चीज तो नहीं कवर कर सकते इस 1 घंटे के सेशन में, बिकॉज फ्रीलांसिंग, बट हम बेसिक्स हर चीज को क्रैक करना चाह रहे हैं। मुझे आप दोनों ने ये डिस्कस कर लिया है कि ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, एंड प्रोफाइल कैसे रियलिस्टिक होनी चाहिए, एंड इट शुड बी रियल, और बिड कैसे करने हैं प्रोजेक्ट्स, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हंट कैसे करनी है, खुद आपको सारा पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए आपकी। एग्जैक्टली। और एनए क्या तो दोनों लगा देनी चाहिए। और पर्सनल क्या नाम है, पर्सनल आप लोगों ने अपनी सारी प्रोफाइल और सब कुछ आपने लगा दिया। ये हमने बात कर ली है अबाउट हाउ टू बिल्ड अप योर प्रोफाइल एंड हाउ टू गेट अ ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल्स। लोगों को फ्रीलांसिंग करनी है, स्किल्स नहीं है, कौन से स्किल्स पे काम करना चाहिए उन्हें? अच्छा, अभी तक सबसे इजी जो है ना, अब जो आप कहीं पे जाने की आपको कोई नहीं है जरूरत, किसी कोर्स की नहीं है, वो आजकल है सोशल मीडिया। आप किसी भी यूट्यूबर से आजकल ऑनलाइन है कोर्स, ठीक है, आप लोग जाएं, आप लोग सीखें। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट साइज क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, थोड़ा सा बस उसके अंदर ये है कि आपकी एफर्ट है कि अगर आप उसको अच्छे से सीखें। सोशल मीडिया से बेहतर आजकल कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कैप्शन कैसे बनाऊं, कैसे अपलोड करूं, पोस्ट क्या होती है, आजकल शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग और Amazon, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आप लोग जाएं, आपको पता होना चाहिए कि सीजन क्या है, सीजन के लिहाज से प्रोडक्ट क्या होंगी। आप लोग ऑनलाइन लोगों को ये दे दें सर्विसेज, मुश्किल नहीं है। Listening, write 3 things down: drop shipping, Shopify, and the third one was Amazon। Amazon। हाँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि क्योंकि अब अगर जिस तरह इज़ा हैं वो ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट करना चाह रही हैं, लेकिन उनसे ना प्रॉपरली नीश रिसर्च नहीं हो रही है, या उनसे डोमेन रिसर्च नहीं हो रही है कि अगर मैं एक्सपायर्ड डोमेन लूँ वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, अगर एक्सपायर्ड डोमेन लेती हूँ तो क्या वो स्पैम तो मार्क नहीं ऊपरी होगी। तो ये सारी चीजें कि अब जो बजाय कि जो स्टार्ट करने वाला है उसके पास बेशक बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाली चीजें हैं ना उनमें वो बिल्कुल ब्लैंक ही होता है। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी चीज सीख सकते हो। आपको पता, आप मतलब कोई भी जो न्यू भी है वो सीख सकता है कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे निकालते हैं और अच्छी डोमेन कैसे निकालते हैं, कैसे जल्दी इसको रैंक किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टोर किनका होगा, वो इज़ा का होगा, मे बी वो शॉपिफाई पे स्टोर होगा। ठीक है, अब उसके लिए जो डोमेन वाला लेनी है वो कोई और सर्च करके दे सकता है, या अभी भी लारेब ने बताया जैसे प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर आप एक रॉन्ग प्रोडक्ट ले लेते हो तो आपका सारा काम का रहेगा। ठीक है, तो ये भी चीज है कि ये छोटी सी स्किल है, इजी पीजी, आप यूट्यूब से सर्च करके सीख सकते हो, जो कि आप बाद में बेच सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज आप उसी टाइम उसको करने चेंज, अपना टाइम वेस्ट मत करें। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, टाइम सबसे कीमती चीज होती है। अगर वो आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं वो
होता है फील कि मैंने इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों किया। होता है। सेकंड थिंग, एसईओ। आजकल आपको पता है लॉकडाउन के अंदर हर बंदे को ऑनलाइन काम की कदर आई है। आजकल लोगों को चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट, लोगों को अपना काम ऑनलाइन करना है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद उनको एसईओ चाहिए। अगर आपको एसईओ आती है तो मेरा ख्याल है कि आपके पास 2-3 क्लाइंट अगर होते हैं तो आपकी अर्निंग हजारों में नहीं होती, तो लाखों में होती है। सीख कहाँ से सकते हैं? कौन से आप रेकमेंड करेंगे कि कोर्सेज यार कहाँ से आजकल हर चीज ऑनलाइन पड़ी हुई है, एवरीथिंग। अच्छा Like, यहाँ पे मैं इनफैक्ट बताऊंगी कि एक तो कौरसेरा, ऑनलाइन खान सारा कुछ मिल भी अकेडमी, जाता है, और दूसरा ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट ना गवर्नमेंट भी करवा रही है। जैसे ई रोजगार बिल्कुल टोटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। आप जाके लैब में जाके आपको फ्री इंटरनेट मिलता है, फ्री लैपटॉप्स मिल रहे होते हैं वहाँ पे, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है आपको, और टॉप फ्रीलांसर्स एज ट्रेनर्स आपको गाइड करते हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के बच्चों की तरह गाइड करते हैं। एक वो तरीका है। बिल्कुल। अगर आप कहते हो कि आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते, तो डिजी स्किल्स एक बहुत जबरदस्त कोर्स है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, वो आपको प्रॉपर एक ट्रैक में लेके जाते हैं। I didn't tell you. डीजी स्किल्स। DG skills, डिजी yes. स्किल्स। DG skills, I love it. one more thing, कौरसेरा, Yes, Coursera. Udemy. Khan Academy, Yes. you got stuck, Lare. Maybe. आई थिंक हम तीनों के साथ हुआ है। अच्छा, नहीं, किसी एक का नेट गया होगा। सो काफी ऐसी हैं साइट जिन्होंने ये जो कोरोना आ गया था इसकी वजह से जो लोग कुछ सीखना चाहते थे उन लोगों के लिए अपने जो कोर्सेज थे वो फ्री कर दिए थे। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत हैं। अगर आपके पास इतनी बड़ी चीज है गूगल, उसके ऊपर हर चीज है। अगर आप सीखना चाहें, करना चाहें, देखें, आई नो एक बंदा है, उसने लॉकडाउन के दिनों में फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाया, फाइवर से शुरू किया उसने, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 6 लाख से ज्यादा इनकम है। लॉकडाउन में उसने किया था स्टार्ट, और देखें 3-4 महीने के अंदर 6 लाख से ज्यादा उसकी इनकम है। इंटरेस्ट है ना, आपने कुछ करना है। और देखो, एक वो बंदा है जिसने 6 लाख कमा लिया, और एक वो लोग हैं जो कि ये रो रहे हैं कि हमें निकाल दिया गया जॉब से, अब हम क्या करें, और वो रो रहे हैं, या बाकी जो है ना यहाँ पता है द रीजन, इवन चार्टर सक्सेस का भी इंटायर मोटो यही है कि आप स्टॉप सेइंग इट, देयर आर नॉट अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। अगर नहीं है, एक बहुत फेमस कोट आपने भी सुनी होगी कि इफ दिस आप नहीं, यू कैन नॉट फाइंड अ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन बिल्ड अ डोर। ओके, जब बिल्ड अ डोर एंड अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, और हर टाइम में अपॉर्चुनिटी है। स्किल्स बढ़ाओ, काम करो स्किल्स पे, फ्रीलांसिंग करो and earn money. And women, the gender equality के लिए, women empowerment के लिए, everything is possible from your comfort of your home through freelancing. So yes, एक और चीज है, अगर आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास फोन है ना, तो आपके पास रोने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, आप फिर रो रहे हो तो आप फिर ड्रामेबाज हो, कुछ नहीं। यहाँ पे एक इशू है, हमारी सोसाइटी का एक इशू है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हर बंदा ना हमें हमारा हाथ पकड़े और सिखाए कि ये चीज ऐसे करने, ये चीज ऐसे होती है, तो फिर हम समझते हैं कि हम शायद कुछ कर लें। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है। अब देखें, लॉकडाउन के अंदर हम लोग जो ऑफिस में होते थे, हम लोग के लिए घर बैठ के काम करना बहुत मुश्किल था। इंटरनेट हमारे पास अच्छे नहीं है, लाइट का इशू है, बहुत इश्यूज थे। बट अगेन हम लोगों ने घर बैठ के सब लोगों ने रिमोटली काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये ऑनलाइन कह रही हूँ, हम क्लाइंट नहीं हुए, हम लोग के क्लाइंट ज्यादा हुए। ऐसा है, मैंने empowering people by just we're saying it. Like आप लोग पता है, the reason I wanted to do this, like especially के freelancers, young freelancers who are not wasting their time, who are basically working on themselves, and अपनी self independence is not bad. ठीक है, earning is not bad in this world. So अगर आप किसी में से अगर आप देखो, लारेब आपके skills different है, सलमा आपके स्किल्स कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, वीडियोस, ये भी है, लारेब के कोडिंग एंड एवरीथिंग। सो एवरी मैं ना यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना चाहूंगी, आप पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं लारेब की बात को लेके चलूंगी। यस, हमने पेमेंट मेथड्स भी डिस्कस करने हैं गाइस। या श्योर, वो भी कर लेते हैं। अच्छा लारेब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुआ। मैं ऑफलाइन ट्रेनर थी। ऑफलाइन ट्रेनर मतलब कि आप क्लास में खड़े होके बस 40-45 लोगों को बस फेस कर रहे होते हो, ठीक है। और अचानक से हमारा ये जब कोविड-19 आ गया, क्लासेस ऑनलाइन हो गई। अब ऐसी लड़की जिससे सेल्फी ना बनती हो, ठीक है, उसने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो
अच्छा, लेकिन फिर भी हम करने पे आए तो कर लिया, ठीक है। सिर्फ मेरा नहीं मसला, चलो हम तो फिर यंग हैं, जो बूढ़े बेचारे टीचर्स हैं उन लोगों ने कैसे ओवरकम किया, लेकिन करने पे आओ तो आप कर सकते हो। तो ये जितने भी न्यू बी फ्रीलांसर्स हैं ना, अगर थोड़े से पैशनेट होंगे तो कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने जॉब नहीं छोड़नी, मैंने ट्रेनिंग करते रहना है, तो कर लिया और ये मेरे फायदे के लिए गया। यानी आप कोई भी स्टेप लेते हो तो आपके फायदे में जाता है, आपके अगेंस्ट नहीं जाता। कि आज हम सेशंस भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अब हमें वो आपको जो कितना शाइनेस टाइम थी वो लगा था खत्म हो गई। सलमा? आपने स्टार्ट कब किया था और आपको कितना टाइम लगा था टू बिकम अ टॉप वन? आप देखो टॉप 1% ऑफ वर्ल्ड वाइड में हो। हाँ, ये कितना अच्छा, टाइम लगा? फ्रीलांसिंग का जो था ना, वो मैंने 2008 से स्टार्ट किया था, लेकिन चूंकि तब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मैंने कम कम करती थी, बहुत कम काम किया करती थी। लाइक महीने में 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लिए, या कम से, या फिर सीखना, या ये वो। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर जो स्टार्ट लिया था वो मैंने 2012 से लिया था। अच्छा। 2012 के बाद मैंने सही, जिसे कहते हैं ना, फुल टाइम फ्रीलांसर बन जाना, वो वाला काम स्टार्ट कर लिया था। और गुड। फिर 2017 में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन ट्रेनिंग फिजिकल क्लास तक तो मैंने काफी मेहनत कर ली, लेकिन जब कोविड-19 आया ना, हमें ऑनलाइन आना पड़ा ना, ये बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ये कि इन चीजों को छोड़ दूं, या फिर ये कि हौसला करूं और मैं आगे सीखूं इनको। और मैंने सीखना स्टार्ट किया, और आप देखो कि वो मेरे फेवर में ही गया। कि आज हम सेशंस करते हैं तो मैं इजीली आ जाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, कैमरा के सामने बैठती मुश्किल नहीं हो रही, और मैं अपना मैसेज ज्यादा लोगों को बता सकती हूँ। ऐसे ही है। यू शुड टेल ऑल्सो पीपल दैट हमने पीछे पूरा अपना सेटअप किया हुआ है, आपकी ग्रीन स्क्रीन का यस, ऐसा कूल सेटअप। यस। या मैं 1 मिनट को ले लूँ हमारे साथ। हमारे पास एक है लारे। यस, वापस। यस, लारे Yes. वागी। We have to talk about now because हमारे पास अब 15 minutes रह गए, और उसके बाद लास्ट 5-10 minutes में we're take questions. मुझे आप दोनों बताएं कि अब हमने सारी बात कर ली, स्किल्स की बात कर ली, प्रोफाइल बिल्डिंग की बात कर ली, अब मुझे बताएं पेमेंट मेथड्स का क्या प्रोसेस है इन पाकिस्तान? पेमेंट मेथड्स आई थिंक सबसे बेस्ट पे जो है डायरेक्ट बैंक। कुछ हैं बैंक जो करते हैं सपोर्ट, कुछ हैं नहीं करते। फिर ज्यादातर लोग लेते हैं वेस्टर्न यूनियन और कुछ ऐसी कंपनीज है। बट आई थिंक अगर आपके पास पेनियर का कार्ड है, आप उसको अटैच करें और उससे अपनी जो पेमेंट्स है वो लें। सेफेस्ट एंड Payoneer, आई थिंक फास्टेस्ट वे है। ठीक है। So Payoneer, because I know about because we need to tell people about this too. Payoneer is a digital bank in Pakistan, right? नो ये कोई बैंक नहीं है, ये बेसिकली कार्ड होता है। आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद आपके एड्रेस के ऊपर या आता है कार्ड। ये सिर्फ एक कार्ड है, कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है। जैसे पेपैल है हाँ, exactly. उस तरह का तकरीबन, So you मिलता make it जुलता। online? यप। Okay, जबरदस्त। सलमा, आप एक और है चीज, स्ट्राइप। स्ट्राइप स्ट्राइप, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे ये ऐड करना ओपन चाहूंगी कि करें, कुछ बैंक्स तो मैं अटैच ना करें। फ्रीलांसर्स को, इंटरनेट, जी ओके, जी, या बाय। मेरी इंटरनेट इशू आ रहा है, हम दोनों साथ में बोल रहे थे। हाँ, ओके। कोई मसला नहीं, आप बोले वेल, सलमान। कुछ तो यहाँ पे बैंक्स हैं, कुछ तो बैंक्स हैं सपोर्ट करते हैं फ्रीलांसर को। तो वो डिफरेंट उनकी प्रोडक्ट्स आती हैं जाती रहती हैं। जैसे कि पहले एमसीबी का लाइट कार्ड आया था, वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड जैसा काम करता था न्यू फ्रीलांसर्स के बिल्कुल लिए। फिर उसके बाद बिल्कुल। यूबीआई का विज कार्ड होता था, वो वर्क करता था बहुत अच्छा सा। ठीक है, फिर दुबई इस्लामिक बैंक ने निकाला प्रीपेड कार्ड, वो बिल्कुल वीजा कार्ड की तरह ही काम करता था। फिर अभी जो है आजकल जो चल रहा है वो मिजान बैंक एक फ्रीलांसर्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा यूबीएल एग्जैक्टली। का वर्चुअल विज कार्ड है, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये है कि जैज कैश ने भी काफी सपोर्ट किया, जैज कैश भी हेल्प कर रहा है जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए। और जो अभी जिस तरह हमें लारेब ने बताया, वेस्टर्न यूनियन, जैसे अगर आप लिंक्डइन पे किसी क्लाइंट को पूछते हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वेस्टर्न यूनियन से पैसे ले लो। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल काम करते हो, जैसे अपवर्क पे काम करते हो, तो डायरेक्ट बैंक अटैच कर लो अपना, डायरेक्ट बैंक में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर पे काम करते हो तो पैसे तो आप डायरेक्ट बैंक में ले सकते हो, लेकिन जब आपको पैसे लगाने पड़े ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड टाइप चाहिए होता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड हम बच्चों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। जो बच्चे $0 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो उनको तो हम कभी भी खर्चों में डालते ही नहीं। लेकिन प्रीपे कार्ड बिल्कुल। कैसा होता है, ये प्रीपे कॉलिंग कार्ड की तरह होता है। अगर ₹100 डालोगे तो ₹100 ही खर्च होगा ना, इससे ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं हो सकते। तो छोटे जो बच्चे होते हैं, जो न्यूबीज होते हैं, उनको ये कहते हैं आप 1000 रुपीज से ज्यादा पैसे रखने ही नहीं कार्ड में आपने। ठीक है, उससे क्या करना होता है, आपने मेंबरशिप लेनी है या बिड्स लेनी है, कुछ भी चीज आपने लेनी है ना, तो आप वो प्रीपे कार्ड से खरीद सकते हो, आपका लॉस नहीं होता कहीं पे भी, क्योंकि आपका कार्ड जो है वो उसमें पैसे है ही नहीं, तो आपका वो टेंशन नहीं रहती। सो यही कुछ मेथड्स हैं। तो इसके पेमेंट अलावा स्किल मैंने होता भी है। विज कार्ड यूज किया हुआ है, विज कार्ड किया हुआ है यूज। लेकिन अभी हर तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और जो आती हैं पेमेंट्स, उनके लिए मैं मिजान कर रही हूँ यूज। आई थिंक अभी तक ऑनलाइन
सर्विसेज में हर तरह से अगर कोई बैंक कर रहा है सपोर्ट तो वो मिजान बैंक है। मिजान। उसके अलावा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप अपना अकाउंट या कोई भी चीज ओपन कर रहे होते हैं आपने उसको ध्यान से फिल करना होता है कि आपने उसको किसके लिए करना है यूज। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि अकाउंट उनका हुआ है ओपन, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये कार्ड या ये अकाउंट हमें ऑनलाइन करता ही नहीं है सपोर्ट। और आपको पता है बैंक वाले आपको इतना गाइड नहीं करते हैं। अगर आप उनको कहें अकाउंट ओपन करना है इसलिए करना है तो उनको ये होता है कि हमारे वो जो एक होते हैं ना उनके वो लोग पूरे करने वाला हिसाब होता है कि हमारे लोग इतने इतने जो है अकाउंट के पूरे हो जाए, अकाउंट खुल जाए, वो ये करते हैं। जब ये चीज एक्चुअली मेरे साथ भी हुई है, बीओपी जब अरफा ने हमारे अकाउंट खोले थे हाँ। बीओपी में ये इशू आया, उसके बाद मैंने अपना अकाउंट अपग्रेड किया तब भी ये इशू आया। बीओपी ने बहुत जलील किया था, उसके बाद मैं गई अस्करी में भी ऐसे हुआ। उसके बाद फाइनली मैंने सुना उसका यूबीएल विज कार्ड मेरे पास 2 थे, उसके बाद वो भी उसमें भी कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए। फिर फाइनल जो मेरा था ना अकाउंट वो था मिजान बैंक, उसके बाद मुझे इशू नहीं आया कोई। कम से कम अब मुझे ये है कि मेरी उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है आपकी एप्लीकेशन में आपके पास आपका कार्ड कंट्रोल है कि आपके पास पहले आता है टेक्स्ट के ये ट्रांजैक्शन होनी है या होगी, आपका कार्ड अनब्लॉक है तो आपकी किसी भी तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो नहीं होती। एक तो ये बहुत सेफ है, ठीक है। जो लोग भी मिजान कर रहे हैं यूज, वो अपनी ऐप जो है वो अब उस पे अकाउंट अपना कर लें क्रिएट, उसके अंदर आपके पास आपके अकाउंट से लेके कार्ड तक की कंप्लीट एक्सेस है। कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि we have established the fact that सब बैंक्स में सबसे ज्यादा जो trustworthy है that is मीज़ान बैंक। यप, अभी जो हमें अभी तक पता है, जो पेनी यानी एक्सपीरियंस भी रहा है अभी, क्योंकि पेनी के भी मैं काफी सेशंस अटेंड किए थे एंड पेनी भी काफी ज्यादा करता है, लेकिन पिछले दिनों आई हर्ड अ न्यूज के पेनी में पेमेंट इश्यूज आए थे कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली, बिल्कुल आए थे। तो मीज़ान में तो नहीं आते? नहीं मिजान तो ये देखें, आई टोल्ड यू कि ये कोई आपका अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ है एक कार्ड है, ठीक है। तो वहां लेकिन तो प्रॉपर अकाउंट या बैंक है, ठीक है। पीपल शुड नॉट बी विलिंग टू पेनी को अभी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए रादर देन मीज़ान। ठीक है, करें बट अगेन प्लान बी आपके पास होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा। मैंने सुने हैं वो बस आई थिंक एक इंटरनेशनल इशू आया था उनका, वरना उसके भी काफी अच्छे रिव्यूज आई हैव हर्ड दैट दे आर रियली गुड इन देयर ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग। सो सलमा एंड लारे, अब मुझे आप बताएं कि आप दोनों को, सलमा ने मुझे बताया कि उन्हें इतना टाइम लगा था एंड उन्होंने अपने स्किल्स डेवलप किए थे। लारे, आपने अपने स्किल्स खुद ही से किए थे थ्रू कोर्सेज या यू हैड सम डिग्री इन इट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो भी चीजें सीखी है मैंने कहीं से उस तरह फिजिकली जाके नहीं किए कोर्सेज। मैं पहले वो सॉफ्टवेयर या टूल जो भी होता है उसको करती हूँ डाउनलोड, पहले मैं देखती हूँ वो है क्या, उसके बाद मैं उसको ट्राई करती हूँ। जहाँ पे मुझे जो इशू आता है, गूगल इज माय बेस्ट फ्रेंड मैंने हमेशा उसी से हेल्प की है। सो यस, प्रोग्रामिंग भी मैंने खुद ही सीखी, उसके बाद डिजाइनिंग भी खुद ही सीखी। उसके बाद जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल किया क्रिएट, मुझे थोड़ा सा प्रीमियर आता था, थोड़ा आता था, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर, लेकिन वो जो एक प्रॉपर वीडियो एडिटिंग होते हैं ना, टेक्स्ट ट्रांजिशन, हर चीज आपने ऐड करना, इतना नहीं आता था। लॉकडाउन में फिर वो भी आ गया। तो ये कि डिपेंडेंट नहीं कभी भी होना चाहिए कि हम कहीं जाएं सीखें तभी कुछ आएगा। अगर आपको कुछ करना है ना तो आप थोड़ा सा बस अपने इर्द गिर्द देखें और आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आपको वो चीज सीखने का इंटरेस्ट है कि नहीं। और एक चीज, आपने जिंदगी में कुछ भी करना है या किसी से करवाना है, आपने अगर खुद करवाना भी है तो उसके लिए आपके पास उस चीज का, उस प्रोग्राम या उस टूल का नाहा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कभी किसी से काम नहीं ले सकेंगे, कभी भी नहीं। सलमा, exactly, I agree with that. सलमा से मैं ये पूछना चाहूंगी कि for those people who have no interest in coding, in tech sector, and even उनकी इंग्लिश भी अगर थोड़ी सी वीक हो, उन्हें आप क्या रेकमेंड करोगे कि किस चीज में उन्हें स्किल्स बढ़ाने चाहिए या कैसे उन्हें काम मिल सकता है फ्रीलांसिंग में, कैसे वो
ठीक है। इज़ा, मैं आपको यहाँ पे ना एक फनी फैक्ट बताऊंगी। मेरी जो डोमेन है ना वो कंटेंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। होता है क्या कि जहाँ मैं कराती हूँ ना, ट्रेनिंग करवाती हूँ, वहाँ पे 3 डोमेन्स होती हैं। एक होती है टेक होती है, एक होती है क्रिएटिव होती है, और एक होती है जिसको हम नॉन टेक या कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, वही मेरे पास होती है। होता है क्या है कि कोई बच्चा भी जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड टेक ही होता है ना, वो टेक डोमेन में चला जाता है, ठीक है। कोई बच्चा जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है ना कलर्स वगैरह में, या उसको लगता है वो थोड़ा क्रिएटिव, वो क्रिएटिव डोमेन में चलता है। इसके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सारे मेरी डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है। किसी का बहुत बड़ा गैप आ गया वो भी आ जाएगा, किसी का केमिस्ट्री में मास्टर्स हुआ तो वो भी आ जाएगा, किसी का उर्दू में मास्टर्स हुआ तो वो भी आ जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। तो मैं उनको ना हमेशा इसी तरह से गाइड करती हूँ। मेजॉरिटी है, तभी तो आपसे पूछा कि डोमेन में क्या प्रोसेस क्या है, कि लोगों को किस पर काम करना चाहिए कि वो दे जस्ट बिल्ड अप देयर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड गेट प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो मैं उनको कहाँ से गाइड करती हूँ, उनको ना बेसिक से इस तरह से लेके चलती हूँ। उनसे कहती हूँ कि लाइक अगर मोस्टली फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका मतलब जल्दी शादी हो जाती है, उसके बाद काफी गैप आ जाता है, उन्होंने कोई काम नहीं किया होता, तो उनको ये होता है कि अगर हम राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब हम क्या करें। तो मैं उनको हमेशा ये गाइड करती हूँ कि देखो, रीराइटिंग बहुत आसान है, ठीक है। कुछ मिनट्स के अंदर आप सीख सकते हो रीराइट कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको जो सबसे बड़ा झाका होता है ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ये है वो, उसके लिए एक टूल यूज होता है grammarly.com, ठीक है। आप grammarly.com यूज करते हो, उसमें आपके जितने भी टेंसेस वगैरह की, स्पेलिंग वगैरह की, सब चीजों की मिस्टेक्स होती हैं, वो सारी फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो रीराइटिंग क्या होता है कि सिंपली आपने एक आर्टिकल को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया, वर्ड्स में चेंज कर दो, ठीक है। अब जैसे लारेव ने एक बात कही है, लारेव की बात को मैंने ध्यान से सुना, उसके बाद मैं आगे बोलूंगी तो वो मैं यूनिक कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं एज इट इज वर्ड टू वर्ड वो वैसे नहीं बोल रही, मैं डिफरेंट बोल रही हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट वहां से ले रही हूँ कि मैं बोल डिफरेंट रही हूँ। Exactly. यही चीज चाहते हैं कि उनको यूनिक टेक्स्ट कंटेंट हो, ठीक है। तो रीराइट कोई बंदा किसी वक्त भी बन सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद होता है प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर बहुत इजी काम होता है प्रूफ रीडिंग। उसमें क्या करना होता है, आपने क्लाइंट अपना काम देता है आपको, ठीक है। जैसे कोई बुक पब्लिश करना चाहता है, ठीक है, तो अपना काम आपको देता है, आप उसका सारा टेक्स्ट पकड़ ग्रामरली में पोस्ट करते हो, ठीक है, और ग्रामरली आपको सारे इश्यूज बता देता है, वो आप फिक्स करते हो, ठीक है। मिनट्स का काम, और ये आपका काम हो गया प्रूफ रीडिंग वाला, डन। That's the वापस best. कर दो क्लाइंट को, आपका काम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि आप जी अब थोड़ा सा हौसला आ गया है, अब आप राइटिंग कर सकते हो, तो राइटिंग भी बहुत आसान होता है। आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा रिसर्च करना होता है, और उसके बाद आप उस पर कर लेते हो। जैसे अभी भी लारेब ने बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात बताई, कि वो क्या करती हैं, वो किसी चीज को डाउनलोड करती हैं, फिर देखती हैं, वो मल्टीपल वीडियोस देखती होंगी, मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ती होंगी, और फिर उनको वो चीज आती होगी। तो जो राइटिंग होती है ना, आर्टिकल राइटिंग, उसमें हम यही कर होते हैं, 10-12 लिंक्स ओपन करते हैं, उनमें से जाके पढ़ते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता कि कैंसर क्या चीज होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, हर बंदा गुरु नहीं होता, उसको हर चीज का नहीं पता होता। आप जाके सर्च करो, 10-12 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कैंसर क्या चीज होती है। अब वेल रिसर्च आपका वो आर्टिकल लिखा जाता है, जब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो, और फिर एक दफा प्रूफ रीड के लिए ग्रामरली में डालते हो, और फिर करते हो, और आपका टोटली यूनिक कंटेंट रेडी हो गया, ठीक है। सो इसी तरह जब आप करते हो, जिस तरह अभी लारेब ने बताया कि आजकल एफिलिएट मार्केटिंग का, यानी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड चला जा रहा है, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली ये है कि आपने बाइंग गाइड देनी है, आपने किसी के बाइंग डिसीजन में उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। आप लैपटॉप लेना चाहते हो, ठीक है, और मैंने क्या करना, मैंने एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसमें 5-10 जो है ना लैपटॉप सजेस्ट कर दूं आपके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपको बाइंग डिसीजन में हेल्प कर दूं, सिंपल सा काम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, उनको कन्विंस कर रहे होते हैं, यार ये वाला फोन ले ले, ये वाला फोन अच्छा नहीं है, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। तो सेम वैसे ही आपको करना होता है, उसमें कोई भी नहीं होता, बस थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी चीजें होती है जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो सीखने में आपको मिनट्स लगते हैं, ठीक है। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हो, आपको मिनट्स में समझ आ जाता है कि अच्छा ये आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप बेशक आपका बैकग्राउंड नहीं है, इवन आप 10th पास हो, आपको पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना आता है इंग्लिश, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, टाइपिंग आपकी स्लो है, सब कुछ है, फिर भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो राइटिंग सबसे ज्यादा आसान काम है, और राइटिंग से आप स्टार्ट करके आहिस्ता से चीजें चेंज करते जाते हो, ठीक है। जैसे लारेब ने बताया, आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। उसमें क्या होता है, आपको फेसबुक पोस्ट लिखनी है, ठीक है। अब अगर आपको नॉर्मल राइटिंग आ गई है, तो सोशल मीडिया पोस्ट लिखना कौन सा मुश्किल काम है, ऐसे एग्जैक्टली ही है, ऐसे ही है, वो ऐसे तो ही। आसान काम होता है, ठीक है। तो और सीखने की कोई बहुत सारी आसान चीजें, किसी भी उम्र में आप न्यू स्किल सीख सकते हैं, कोई उम्र नहीं है कि आपने अगर ये तब नहीं किया अब नहीं कर सकते। इट जस्ट हैज टू बी, यू नो, कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए एंड वो पैशन। हाँ, यहाँ पे मैं यही कहूंगी, मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आप उस चीज को छोड़ दो जिसमें आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। जैसा कि टेक्निकल है ना, उस फील्ड में मत जाओ, ठीक है। कोडर अभी जाहिर सी बात आप नहीं हो और नहीं बनना चाहते, आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, या उस तरह से नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। और वैसे भी देखो, अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको सिर्फ वेबसाइट ही तो नहीं चाहिए ना, आपको तो कंटेंट राइटर भी चाहिए जो वेब कंटेंट लिखेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं चाहिए ना जो कि ग्राफिक्स बनाएगा, आपको कोई कंटेंट मार्केटर भी तो चाहिए ना, जो कि कंटेंट मार्केटिंग करे, सेल्स लेकर आए, लीड्स लेकर आए,
ऐसा भी तो चाहिए ना आपको। तो हर एक बंदे की वैल्यू है। जो बंदा भी ऑनलाइन आप जो भी काम करना चाहते हो, इवन कि आपको डाटा एंट्री भी अगर समझ में आता है ना, डाटा एंट्री क्या होता है, जैसे रियल लाइफ में आप ना बाहर से बोरियां उठा उठा के अंदर स्टोर के अंदर ला रहे होते हो ना, सामान उठा उठा के ला रहे होते हो, सेम ऑनलाइन वही डाटा एंट्री है। ठीक है, कि आपको बता दिया जाता है, क्लाइंट आपको खुद गाइड करता है 3-4 दफा कि शॉपिफाई में प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद उसकी 500-600 प्रोडक्ट्स हैं, अब आपने वो ऐड करते जाना है। पर प्रोडक्ट अगर आपको $1 मिल रहा है, इसका मतलब है 500 प्रोडक्ट्स का तो आपको $500 मिल जाएगा। एंड ये तो ठीक है, तो वो इजी पीजी काम, ये तो करने हर कोई कर सकता है। एग्जैक्टली। ओके गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो शॉपिफाई हो गया, SMM हो गया, SEO हो गया, ये इस तरह के काम आजकल एक्चुअली डिमांड में है। चाहे आपकी अपलोडिंग हो जाए, कंटेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा लोग प्रोडक्ट हंटिंग से कमा रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट वो दिया है जो उसकी पूरी दुनिया में बिक रही है, तो वो तो खुश होगा ना, वो तो आपको पे करेगा। और जो आप उसको कहेंगे वो आपको एग्जैक्टली वो करेगा पे, क्योंकि आपने उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया है काम। तो अगर आप छोटे, आपको जैसे सलमा ने कहा आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, मत करें। जो ऐसा काम है जहां पे आपको लगता है कि आपका दिमाग लग रहा है, टाइम लग रहा है, मत करें वो। ये छोटे छोटे ऐसे हैं काम, थोड़े से क्रिएटिव हैं, कॉमन सेंस के हैं। अगर आप इनको अच्छे से करते हैं पिक, तो घर बैठे आप अच्छे से अच्छे नंबर अर्न कर सकते हैं। Exactly. Sorry to interrupt you, Lare. हमारे पास 1 minute is left, and we got a lot of comments, and सब comments हमने almost हर question को भी tackle कर दिया है. Somebody has also said that Bank Alpha is also best online services, and for Jazz Cash वगैरह की जो आपने बात की, Wispay card का भी आपने बोला था, right? Wispay card. नहीं, it's Stripe account होता है। Okay. बेसिकली आपका अगर कहीं इंटरनेशनल अकाउंट है, वो उसके साथ होता है अटैच, और उसके साथ आपका पेनीर कार्ड भी होता है अटैच, ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई मसला ना आए। We had a wonderful discussion, ladies, today, and it was amazing. It was a delight to, आप लोगों के साथ सारे discussion करना, and freelancing के बारे में. Even I learned a lot of things today. So this was also very beneficial for me, and I hope so for everybody else too. So everybody who's watching, and I hope आप सबने इससे काफी कुछ सीखा हो. So stay tuned, go like and subscribe our YouTube channel. अगर आपसे miss out हो गई है video, so it's recorded and it's going to be posted on YouTube. And सारे हमारे promote our page, and good luck with everything you do. And don't forget one thing: you can do every single thing. Just don't stop believing in yourself. Okay, everybody. Khuda Hafiz.